Okay, we're going to discuss about immunization. So you can always find me, ask Dr. Rajiv, all right, in Quora and LinkedIn. Okay, now vaccine provides an active immunity to the body by stimulating the immune system, which produces the antibodies against disease producing organisms. Okay, so this is just a definition point of view, right? Now vaccines can be live attenuated and killed or inactivated, right? Now live attenuated are the organism itself, the live vaccines, but they are weak. They either cause no disease or a mild form of the disease. For example, BCG, measles, PV. Okay, so this is BMO. Fine. Now, what is killed or inactivated? The vaccine produced by the viruses or bacteria and then inactivated with the heat or chemicals. Okay, so parts of the viruses, not the active virus, right? So and the bacteria and then inactivated by the heat or the chemicals. Now cannot grow in a vaccinated individual, so cannot cause disease itself. Okay, now this is less effective than the live vaccine, requiring multiple doses for full protection as well as booster doses to maintain the immunity. So it needs a booster. Now example is important: whole cell pertussis, fractionated protein based like DT and TT, and recombinant like hepatitis B vaccines. Okay, so this was vaccine. So vaccines provide active immunity to the body by stimulating the immune system, which produces antibodies against the disease producing organisms. This is the definition. Fine. So two types, live and killed. So in 2 minutes we have seen about what is vaccines. Now routine immunization is one of the most cost effective public health interventions and was first introduced in India in 1978. The whole concept was in 1978. So थोड़ा सा इसका हिस्ट्री देख लेते हैं, माइलस्टोन देखते हैं, राइट? 1978 में क्या हुआ था? एक्सपैंडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन. ओके, नाउ BCG, DPT, OPV और टाइफाइड, ये 4 वैक्सीन दिया जाता था उस समय. नाउ लिमिटेड टू मेनली अर्बन एरियाज. ठीक है, रूरल एरियाज़ में पहुंचना दिक्कत था, अर्बन एरियाज़ में. तो 1978 की बात थी ये. 1985 में क्या हुआ? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वाज इंट्रोड्यूस्ड. ठीक है, expanded to the entire country. Measles vaccine was added. Close monitoring of less than 1 year age group was started in 1985. Okay, in 1986 there was technology mission. In 1919 there was vitamin A supplementation, very important. In 1992 child survival and safe motherhood program was started. In 1995 polio national immunization days was started. In 1997 reproductive and child health care, that is the RCH1, was started, and in 2005 it was modified to RCH2 and NRHM, that is the National Rural Health Mission. Okay, now this is important. A National Family Health Survey in 2005 and 2006 reports that only 43.5% of the children in India received their primary vaccination by 12 months of age. Only this 43.5. So it is so less, right? Now let's talk about some facts about the vaccines itself. Now BCG vaccine left upper arm में दिया जाता है to maintain the uniformity and for helping the surveyors. Okay, this is not scavengers, sorry, this is surveyors. And 0.05 ml of BCG is given to the newborn below 1 month as skin is very thin, and intradermal injection of 0.1 ml may break the skin and penetrate the deeper tissue to cause some local abscess or enlarge axillary lymph node. So it is not given 1 ml, 1 ml नहीं, 0.05 ml. ठीक है, only given up to 1 year as most of the acquired natural infection. So this is important. BCG is for TB, right? Or elimination TB by 2025. So TB is very very important. Everywhere the question will be asked on TB. Okay. Now OPV can be given till 5 years of age. Can be given by 5 years of age. DPT booster can be given with OPV and vitamin A. So vitamin A, OPV and DPT can be given simultaneously.
right? Now DPT and DT can be given up to 7 years of age. Minimum gap of 4 weeks between the two is required, okay, for 4 weeks. Not given in gluteal region to prevent damage to the sciatic nerve, सबसे बड़ा nerve है ना, सबसे मोटा nerve, thickest nerve, hence given anterolaterally in the mid thigh, ठीक है, ये इसका साइट है. Now in the DPT component P, the pertussis one, ठीक है, जो whooping cough है, can cause allergic reaction and develop encephalopathy. This is very very important, ठीक है, इसीलिए आप DPT की जगह में DT भी देते हैं डायरेक्ट, ठीक है. Now TT vaccines, 2 doses are given during pregnancy, and hepatitis B vaccine, DPT and hepatitis B cannot be mixed in the same syringe. It is important question. Birth dose of hepatitis B vaccine effective in preventing perinatal transmission of hepatitis B, right? और JE का strain है SA 14-14-2, right? Now something about cold chain. Let's discuss something about cold chain. It is a definition क्या है? What is the definition of it? It is a system of storing and transporting vaccines at recommended temperatures from the point of manufacture to the point of use. What are the elements of it? Of the cold chain? First, the personnel, equipments and producers. So the PEP. These are the elements. Personnel to manage the vaccine storage and distribution, equipment to store and transport vaccine and to monitor temperature, procedures to ensure that the vaccines are stored and transported at appropriate temperatures. So these are the elements of the cold chain. Okay. Now vaccine in exposure to heat, light and cold, what happened, and it is very very important, what that BCG, it heat stable and sensitive to light, okay, but it does not damage by freezing. Similarly OPV is sensitive to heat but not damaged by freezing, and measles is sensitive to heat and light both, but it is not damaged by freezing. This is important. Now these vaccines, DPT, the T vaccines, the DPT, DT and TT, okay, it freezes at -T degree Celsius. So T में यहाँ पे -3 degree Celsius में it freezes, ठीक है. जबकि हेपेटाइटिस B it freezes as less as 0.05 degree Celsius. So these all are relatively heat stable, but they are freezed. Okay, so they should not be frozen. Okay, at PSC all vaccines are kept in the ice-lined refrigerator for 1 month at, ये टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQs में पूछे जाते हैं, ठीक है, MCQ भाई में पूछा जाता है, +2 to +8, ये याद रखना, ठीक है, डिग्री सेल्सियस. Now thermosensitivity of the vaccines. Thermosensitivity of the vaccines क्या है? तो vaccine sensitive to heat क्या है? Now most vaccines जो है हम लोग क्या बोलेंगे कि जैसे BCG, OPV, measles, DPT, BCG, now this BCG is after reconstitution जो होता है, it is most sensitive to the heat, ठीक है. फिर OPV, measles, DPT और BCG before reconstitution, ठीक है. फिर DT, TT ये सब बाकी बाद में आता है. तो दिस इज द लीस्ट वन, लीस्ट सेंसिटिव टू द हीट, जो भी डिस्कस किए कुछ देर पहले. और वैक्सीन सेंसिटिव टू फ्रीजिंग में क्या होगा? हेपेटाइटिस बी. अभी हम देखें 0.0, 0.5, राइट, इसी में तुम्हारा फ्रीज कर जाता है. और ये सब तुम्हारा टी सीरीज़ के वैक्सीन है. दीज आर टी सीरीज़ वैक्सीन्स. ओके, टी सीरीज़ एक म्यूज़िक का एल्बम ये है, कंपनी है. सो टी सीरीज़ याद रखना, टी सीरीज़ वैक्सीन्स, ठीक है ना. सो दीज आर सेंसिटिव टू फ्रीजिंग, ठीक है. नाउ हीट डैमेज. ऑल वैक्सीन्स आर डैमेज बाय टेम्परेचर मोर देन 8 degree Celsius. Reconstituted BCG, measles and Japanese encephalitis are more sensitive to heat and light, as they do not contain preservative. Also, there is a risk of contamination of Staph aureus, leading to toxic shock syndrome. Therefore, should not be used after 4 hours of reconstitution. So, all the live vaccines are never used after 4 hours after reconstitution. So reconstitution BCG, measles and Japanese encephalitis are thrown after 4 hours of reconstitution. The important is the vaccine vial monitor. ये शॉर्ट नोट आ सकता है. वैक्सीन वायल इसमें डायग्राम बना के दिखाना, ठीक है, ऐसे करके डायग्राम बना के दिखाना, ये सब, ठीक है. तो वैक्सीन वायल मॉनिटर VVM
is a label containing a heat sensitive material which is placed on a vaccine vial. ठीक है, so you should know what is a vial, right? It looks like this, ठीक है, और इसमें ऐसे करके ये होता है, राइट, ऐसे, राइट. सो दिस इज अ वायर टू रजिस्टर अ क्यूमुलेटिव हीट एक्सपोजर ओवर टाइम. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ अ लेबल कंटेनिंग अ हीट सेंसिटिव मटेरियल. कोई नहीं पूछेगा कि मटेरियल किससे बना है, क्या बना, उतना डिटेल में कोई नहीं पूछेगा. विच इज़ प्लेस्ड ऑन अ वैक्सीन वायल टू रजिस्टर क्यूमुलेटिव हीट एक्सपोजर ओवर टाइम. द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टाइम एंड टेम्परेचर cause the inner square of the VVM to darken gradually and irreversibly. ठीक है, क्या हो जाएगा टाइम के साथ, ये डार्क हो जाएगा. ठीक है, तो ये अगर डार्क हो जाएगा तो वी शुड ऑलवेज चेक बिफोर ओपनिंग अ वायल दैट स्टेटस ऑफ द VVM. तो अगर ये डार्क हो जाएगा तो वो यूज़ में नहीं आएगा. इट शुड बी ऑलवेज लाइटर, नॉट इवन इक्वल, ऑलवेज लाइटर. ओके. नाउ डी फ्रीजर जो होते हैं उसमें OPV को रखा जाता है -25 टू -15 टू -25 डिग्री सेल्सियस में. ठीक है. ना वैक्सीन कैरियर जो होता है वो ऐसा रहता है जिसमें 4 कंडीशंस पैक रहते हैं एट अ टेम्परेचर ऑफ 2 to 8 डिग्री सेल्सियस फॉर 12 आवर्स. ठीक है, इफ़ नॉट ओपन फ्रिक्वेंटली. वो 12 घंटा तक रह सकता है अगर बार बार उसको नहीं खोला जाए तो. जिसमें 16 से 20 वायल्स को हम एंड डाइल्यूएंट्स को हम लोग, ठीक है, उसको हम लोग PSC2 सेशन साइट में ले जाते हैं. नाउ इम्पॉर्टेंट आता है सेक टेस्ट. ये क्वेश्चन पूछा जाता है PSM में, पीडियाट्रिक्स में. तो इसमें क्या है, दिस इज चेकिंग फॉर द कोल्ड डैमेज. कोई भी कोल्ड डैमेज जो होता है वो शेक टेस्ट से पता चलता है. ठीक है. नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है AEFI. व्हाट इज AEFI? इट इज़ द एडवर्स इवेंट फॉलोइंग द इम्यूनाइजेशन. Okay, and it is defined as the medical incident that takes place after an immunization causes concern and is believed to caused by the immunization itself. So it is any medical incident that takes place after an immunization. Okay, what are the types of AEFI? अब सब एक एक का हम लोग डेफिनेशन देखेंगे. जैसे वैक्सीन रिएक्शन क्या होता है, अभी कोविड वैक्सीन सबको पढ़ रहा है. ठीक है, सम पीपल आर टेलिंग दैट वी आर गेटिंग सम रिएक्शंस. ठीक है, तो क्या है, तो डिफिनेशन जानना बहुत जरूरी है और ये एग्जाम में आएगा. ठीक है. सो एन इवेंट caused or precipitated by the active component or one or the other components of the vaccines, okay, like adjuvant, preservative, stabilizers. Now this is due to inherent property of the vaccine itself. ठीक है, तो any event caused or precipitated by the active component or one of the other components of the vaccine like the adjuvant, the preservative or the stabilizer is called vaccine reaction. For example, high grade fever caused by the DPT vaccination. Okay, so this is the example of vaccine reaction. अभी कोविड वायरस का वैक्सीन चल रहा है इसलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है. Now what is a program error? तो ये टेक्निकल टर्म है, जानना बहुत सिंपल है, ध्यान से रखना. ठीक है, प्रोग्राम एरर क्या होता है, एन इवेंट कॉज्ड बाय एन एरर इन द वैक्सीन प्रिपरेशन, हैंडलिंग और एडमिनिस्ट्रेशन. तो ये प्रोग्राम एरर क्या है, एक तरह का मेडिकेशन एरर बाय द नर्स. ओके, द केयर गिवर जो दे रहे हैं. तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ड्यू टू अनस्टेराइल इंजेक्शन, सिरिंज अनस्टेराइल होने के कारण वो जो दिए हैं वो क्या हो गया, मतलब इन्फेक्शन कॉज कर गया. ठीक है ना. कोइंसिडेंशियल जो होता है, इट इज़ जस्ट लाइक हो गया. ठीक है, वी डोंट नो, देयर इज अ टेम्पोरल एसोसिएशन. ठीक है, सो एन इवेंट दैट ऑकर्स आफ्टर इम्यूनाइजेशन बट इज नॉट कॉज्ड बाय द वैक्सीन, कहीं और तरह से हो गया, तो दिस इज ड्यू अ चांस ऑफ टेम्पोरल एसोसिएशन. राइट. सो निमोनिया आफ्टर ओपीवी लगाने के बाद निमोनिया हो गया, कोई रिलेशन नहीं है, वैक्सीन से नहीं होता है बट फिर भी हो गया, वी डोंट नो, राइट. इट्स अ टेम्पोरल एसोसिएशन. नाउ इंजेक्शन रिएक्शन क्या होता है कि एन इवेंट कॉज्ड बाय द एंग्जाइटी, राइट, अबाउट और पेन फ्रॉम द इंजेक्शन इटसेल्फ रादर देन द वैक्सीन. ठीक है ना, मतलब वो क्या हो गया कि फेंटिंग स्पेल इन अ टीनेजर आफ्टर इम्यूनाइजेशन, फटाक से इम्यूनाइजेशन लगा और वो आदमी गिर गया और उससे उसको चोट लग गया. ठीक है, तो दिस इज इंजेक्शन रिएक्शन. ओके, तो ये सब जान के रखो. ना अननोन में आ जाएगा, द कॉज ऑफ द इवेंट इज नॉट डिटरमाइंड. ठीक है. नाउ फ्यू ऑफ द केस डेफिनेशंस, दिस इज इम्पॉर्टेंट एक्चुअली. जैसे OPV में क्या होता है, दिस इज इम्पॉर्टेंट एक्चुअली, वेरी इंपॉर्टेंट. देखिएगा, वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस, दिस इज अ शॉर्ट नोट. ठीक है, तो दिस इज द केस डेफिनेशन एंड दिस इज द ट्रीटमेंट. ओके,
एंड दिस इज द वैक्सीन विच इज़ जिसके चलते ये हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज VAPP, VAPP, ठीक है। सो एक्यूट ऑनसेट ऑफ फ्लैसिड पैरालिसिस एंड न्यूरोलॉजिकल डेफिशिट्स compatible with diagnosis of poliomyelitis with isolation of the vaccine virus and absence of wild virus in the stool, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट नोट में आ सकता है ये, दिस इज अ शॉर्ट नोट क्वेश्चन, ठीक है। एनाफाइलैक्टॉइड रिएक्शन क्या है? एक्यूट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ये क्या चीज़ है? एक्सैजरेटेड एक्यूट एलर्जिक रिएक्शंस occurring within 2 hours after immunization, characterized by one or more of the following, like laryngospasm, wheezing, right? One of the skin manifestations like high facial edema, something like that. Okay, now these are self-limiting, okay, and antihistaminics can be used, right? All vaccine have this anaphylactoid reaction, so this is not so important, but वाइवा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एनाफाइलेक्सिस जो होता है ये क्या होता है? एनाफाइलैक्टॉइड रिएक्शन जो होता है इट इज़ लाइक, ऑइड मीन्स टू लाइक, ठीक है ना। तो एनाफाइलेक्सिस लाइक रिएक्शन, एनाफाइलेक्सिस क्या है? इट इज़ अ सीवियर इमीडिएट विद इन 1 hour एलर्जिक रिएक्शन लीड टू सर्कुलेटरी फेलियर विथ और विदाउट ब्रोंकोस्पाज्म एंड लैरिंगोस्पाज्म एडिमा। यहाँ तुरंत आपको एड्रेनालिन इंजेक्शन देना पड़ेगा, ठीक है। वो किसी के साथ हो सकता है, कोई भी वैक्सीन के साथ हो सकता है, ठीक है। नाउ डिसेमिनेटेड BCG वैक्सीन क्या है? डिसेमिनेटेड BCG वैक्सीन, आप BCG के बारे में पढ़िएगा, इसको अपने से पढ़ लीजिए, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। एनकेफेलाइटिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्यूट ऑनसेट ऑफ मेजर इलनेस अटैच्ड टू 1 or 2 ऑफ द फॉलोइंग 3 कंडीशन लाइक सीजर, सीवियर अल्टरेशन ऑफ लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस लास्टिंग फॉर 1 or more days एंड डिस्टिंक्ट चेंज इन बिहेवियर लास्टिंग 1 or more days, ओके। तो दिस इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट बट स्टिल ये मीजल्स और पर्ट्यूसिस में देखा जाता है, खासकर पर्ट्यूसिस को याद रखना, भूलना मत। DPT में P वाला बदमाश है, ठीक है, इसलिए हम लोग DT यूज़ करते हैं, DPT बहुत कम यूज़ करते हैं, ओके। फीवर तो यार सब जगह होता है उसका, ये फीवर का तुम ये पढ़ सकते हो कि फीवर को माइल्ड, हाई, एक्सट्रीम किसको बोलते हैं, राइट। सिर्फ स्पॉन्जिंग करने से ही हो जाता है, ठीक हो जाता है, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। HHE और शॉक कोलैप्स देख लेना, इट्स मेनली ड्यू टू DPT और उसमें भी फिर वही P है ना। तो दिस इज पर्टिकुलर एपिसोड। इंजेक्शन साइट एब्सेस भी हो सकता है, वो लगाने में गलती कर लिया हो, अगर मान लो स्टेराइल यूज़ नहीं कर रहे हैं तो देख लेना क्या है ना, IND करके हम लोग हटा देते हैं, इंसिजन एंड ड्रेन, राइट, IND इंसिजन एंड ड्रेन वो करके करते हैं, ठीक है। लिम्फोसाइटिस भी होती है, ठीक है, बहुत सारे इसमें होते हैं, खासकर BCG में सबसे कॉमनली देखा जाता है और इट इज़ कंपलसरी, अगर ये नहीं होगा तो हम लोग उसको मतलब सही वैक्सीनेशन नहीं मानते हैं, राइट। BCG में इवन तुम्हारा ऑस्टाइटिस या ऑस्टोमाइलाइटिस होने का भी चांस रहता है, ठीक है। माइक्रोबैक्टीरियम बोविस का स्ट्रेन जो है वो देखना पड़ता है ना, उसमें आइसोलेटेड होता है, राइट। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, खासकर सीजर्स हो सकते हैं, सेप्सिस हो सकता है, ठीक है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम बताए थे वो हो सकता है। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो कुछ टर्म्स है, कुछ डेफिनेशंस है, तो कुछ डेफिनेशंस है जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2 marks के लिए, वही एक्स्ट्रा एज के लिए एक तरह से, राइट, जस्ट लाइक एन एक्स्ट्रा एज। लाइक AEFI तो हम लोग पढ़ लिए, बर्नलिंग इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, केस फैटेलिटी रेट इज़ इम्पॉर्टेंट, PSM में पूछा जाता है, कोल्ड चेन PSM में पूछा जाता है, पीडियाट्रिक्स में पूछा जाता है, ठीक है। और यू नो लाइक दिस ड्रॉप आउट रेट, डाउन टाइम, ये सब जितने भी है, ड्रॉप आउट्स, ये सब जितने भी है, दीज आर लाइक इट डिपेंड्स कि एग्जामिनर व्हाट द एग्जामिनर इज थिंकिंग अबाउट, राइट। नाउ ये वेट अ मिनट, या सो दिस इज फीडबैक, फीड फॉरवर्ड, ये सब, राइट। सो इट्स फाइन अगर तुम लोग पढ़ोगे तो ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना है, बट यू शुड नो लाइक व्हाट इज फीडबैक एंड feed forward, okay. Lead time is important. Now this lead time is very very important. Lead time, the time between the ordering of the new stock form is received, ये बहुत important है, PSM में ये पूछा जाता है, ठीक है। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट ये सब रहने दो। प्रोबेबल को देख लो, प्रोबेबल वैक्सीन पोलियो डिराइव बेस्ड ऑन द हिस्ट्री एंड ये, ओके। सो मतलब वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ था ये, पोलियो नहीं तो, सॉरी। डायग्नोसिस ऑफ वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज बेस्ड ऑन द हिस्ट्री एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ठीक है ना, ये दिस वाज द प्रोबेबल। रिम्स क्या है, देखिए खुश मत हो जाना, ये रिम्स हमारे रिम्स नहीं है। कंप्यूटर बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम दैट फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ रेगुलर एंड टाइमली इम्यूनाइजेशन डेटा फ्रॉम PSC ब्लॉक टू द डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल्स टू जनरेट एनालिटिकल रिपोर्ट्स, इसको बोलते हैं रिम्स, ठीक है।
तो ओके फाइन। सर्वाइलेंस जानते हैं आप क्या होता है, व्हाट इज सर्वाइलेंस, वैक्सीन एफिकेसी क्या होती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट वैक्सीनेशन। आई बिलीव 20 मिनट्स इज़ मोर देन इनफ फॉर वैक्सीनेशन, बट ये क्वेश्चन आप लोग को आ सकता है, AEFI पे क्वेश्चन आ सकता है, एंड दिस इज़ माई गेस। कुछ क्वेश्चंस मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा, खासकर अगर टीबी पे क्वेश्चन अगर आ सकता है तो ट्यूबरक्लोसिस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इवन कोविड के वैक्सीन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बारे में, ठीक है, कि वो किस तरह का है राइट, लाइव है कि डेड है, मीन्स लाइव है या इनएक्टिवेटेड है, कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन, ठीक है, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टीबी पे क्वेश्चन आएगा क्योंकि 2025 तक उसको कंप्लीट करना है टीबी, ठीक है। आप लोगों को क्वेश्चन विटामिन ए का अगर पूछेगा तो विजन 2020 पे पूछा जा सकता है, ब्लाइंडनेस का लिए क्या किया जा रहा है या क्या अपडेट्स है इसमें। अगर पीडियाट्रिक एज ग्रुप में आपको इन जनरल इससे ज़्यादा क्वेश्चन आने का संभावना कम है। वेल यू कैन बी आस्क्ड कि लाइक कौन से वैक्सीन्स दिए जाते हैं नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के हिसाब से, वैक्सीन, ठीक है, नेम्स ऑफ द वैक्सीन, साइट फॉर द वैक्सीन टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी, ठीक है, कौन से रूट से दिया जाता है ये आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है, या कोई जैसे VADP बोले हम, VAPP बोले हम, वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस, तो ये जो रिएक्शंस देखने को मिलते हैं, ठीक है, जैसे लाइक OPV में ये सब मिल रहा है राइट। तो ये जैसे एनकेफेलोपैथी हो गया आपको मिलता है पर्ट्यूसिस से, तो ये सब पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। सो signing off, okay, good night. I hope it has helped you a bit, okay, so good night, bye.